चलो फ्रेंड्स, फिर से फिजिक्स में आगे आगे जाएं। तो आगे हम करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो व्हेन लाइट passing through travel through one transparent medium to another transparent medium means one optically rarer medium to another optically denser medium. So when it's passing through one optically denser or rarer to another one, at that time ray is bended from its original path. This bending of ray is known as refraction of light. Dear friends, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ड्राइंग पेपर पे मैंने एक इंसिडेंट रे ली है। जो इंसिडेंट रे अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो ये विदाउट डेविएशन, विदाउट बेंडिंग अपने स्ट्रेट पाथ पे चला जाएगा। दिस इज नॉर्मल. This is known as angle of incidence. Now, I put one glass slab. Now, light passing through air medium to glass medium means rarer optical medium to denser optical medium. So think what happens. See, now this light is incident on interface surface. Some energy is reflected and some energy is refracted. Here, inside that is bended towards the normal, and then denser to rarer, it's bended away from normal, and at last it came out from this. And see here, this refracted light is parallel to original path. That means here this ray is shifted. How much? So it's shifted perpendicularly. See? Perpendicularly. How much? Okay, by this much distance. This is known as lateral shift. This perpendicular shifting is known as x, and that is known as lateral shift. So here, this is medium number 1 is air medium. This is medium number 2 is a glass medium. So when ray passing through rarer medium to denser medium, it's shifted towards the normal, is bended. This phenomena is known as refraction. And then another denser to rarer, see, it's shifted away from that normal, away from normal. But at last, air to air, this angle of incident and here this angle is remain same, and that's why it's parallel to the original path, but path is shifted.
this perpendicular distance, perpendicular means lateral, this perpendicular distance is known as lateral shift. So first, what is refraction of light? Second, laws of refraction. So here, see, this is interface surface, this is air medium, this is another water medium. Medium number 1 is optically rarer, medium 2 is optically denser. Suppose ray is incident on surface with normal angle with, that is suppose theta 1, and absolute refractive index of medium 1 is suppose n1, medium 2 have suppose refractive index is n2. Now when this ray is incidence, this is its original path, but there are two tensor is bending towards the normal, this deviation is delta, and this ray is known as refracted ray, and this phenomena is known as refraction. Angle with normal is known as theta 2. Here theta 2 is angle of refraction. Now, what is the laws of this? Okay, incident ray, normal and refracted ray. Incident ray, normal की line और refracted ray, this all are in same plane. ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे. जैसे कि अभी ये व्हाइट बोर्ड की प्लेन है तो वो एक ही प्लेन में होंगे. सेकंड थिंग, स्नेल्स लॉ इसके लिए प्रैक्टिकली स्नेल्स ने इसके लिए लॉ बनाए, दैट इज नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो मीडियम 1 है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एंगल थीटा 1 है, सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, थीटा 2 है. तो लो बनाया n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2. मतलब कि फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दैट एंगल विथ नॉर्मल, ऐसे एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसकी साइन प्रोडक्ट कोई भी मीडियम के लिए इक्वल ही होगी. मतलब n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू n3 sin थीटा 3. कोई भी मीडियम के लिए n इंटू साइन थीटा की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी, और दिस इज नॉन एज स्नेल्स लॉ, जिससे आपको रिफ्रैक्शन के हर थ्योरी और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2. दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम इज हाउ मच डेंसर फॉर दैट इंसिडेंट लाइट. जो लाइट मीडियम में से ट्रैवल हो रही है, वो लाइट के लिए, वो वेव के लिए ये ट्रांसपेरेंट मीडियम कितना डेंसर है,
तो वो डेंसिटी जो है उसको मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। हाँ, यहां पे ये ध्यान रखना कि जो हम कहते हैं डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, ये नहीं है। यहां पे लाइट को वो कितना डेंसर लगेगा, और दैट डेंसिटी is known as refractive index of that medium. Now with respect to, तो कि कुछ नहीं है, मीडियम नहीं है, तो वो है वैक्यूम। वैक्यूम और नॉर्मली प्रैक्टिकली एयर को हम एयर को हम वैक्यूम लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वैक्यूम तो हम प्रैक्टिस में जो भी प्रैक्टिकल करेंगे उसमें नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली एयर मीडियम को हम वैक्यूम लेंगे, लेकिन एक्चुअली है वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी, तो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उसको कहते हैं c, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, तो क्या हाउ मच डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू, तो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिकेट विथ c and magnitude of c is 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड, जो आपको मालूम है। v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और वो कोई भी मीडियम के लिए c से कम ही होगी। v is always less than c. That means refractive index of any material, कैसा, ट्रांसपरेंट मटेरियल, ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। उसको वो मीडियम वैक्यूम या एयर से डेंसर और डेंसर ही लगेगा। मतलब कोई भी मीडियम की एब्सोल्यूट refractive index is always greater than 1. Absolute refractive index means with respect to vacuum उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, that is known as absolute refractive index. Now we know in 11th standard we already studied that velocity of wave is equal to lambda into f. हाँ, और भी दो आपको मालूम होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी, ये भी फॉर्मूला थी। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ये भी फॉर्मूला थे, जो आपको कहीं एमसीक्यू में काम आएंगे। लेकिन यहां पे हम लेंगे लैम्बडा इंटू एफ। Lambda is wavelength of light, f is frequency. Frequency is a property of source, मतलब कि when wave passing through one medium to another medium, when light passing through one medium to another medium, its frequency does not change. Velocity change होगी तो साथ साथ wavelength उसकी change होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी की जगह पे लगाएंगे लैम्बडा इंटू ए इंटू एफ, ए मीन्स इन एयर और वैक्यूम, डिवाइडेड बाय मीडियम की एफ एफ कैंसल, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवरिंग एयर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवरिंग मीडियम इन सेम टाइम। क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी,
फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मतलब पीरियोडिक टाइम सेम रहेगा, तो सेम टाइम में एयर में जो डिस्टेंस कवर होगा डिवाइडेड बाय मीडियम में डिस्टेंस कवर होगा, ये रेशियो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लैम्बडा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन मीडियम। और ये एमसीक्यू भी है कि सपोज थिकनेस ऑफ स्लैब इज टी and refractive index of glass is 1.5, तो ये मीडियम पास करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा भी एमसीक्यू है। सेकंड है इतना ही टाइम में एयर में अगर उसको पास होना है तो एयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एयर बाय डिस्टेंस इज मीडियम, बट मीडियम में डिस्टेंस गिवन टी, टी इज थिकनेस, वो टी टाइम नहीं है। जागो जागो, टी थिकनेस, दैट्स व्हाई डिस्टेंस इन एयर इज इक्वल टू n into t. This is known as distance in air. T is distance in medium, and that's why path difference, दोनों के बीच का path difference, आगे पीछे कितना रह जाएंगे, difference is how much, so that is known as path difference is equal to nt minus t, t common n minus 1। ये आपको ये और नेक्स्ट चैप्टर जो है वेव, उस दोनों में काम आएगा, अच्छी तरह से समझ लेना। ये हुई बात। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे रिलेटिवली ले हम कि भाई वाटर की विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास with respect to oil, not with vacuum but with two different medium, so it's write down like this n21, ऐसे भी लिखते हैं 2n1, मतलब होता है n2 by n1। we know n2 is equal to c by v2 और n1 is equal to c by v1, C cancel, V1 by V2, that means N2 by N1 is equal to V1 by V2, ये यहां पे ले जाएंगे तो N2 V2 is equal to N1 V1। मतलब कि पूरे रिफ्रैक्शन के लिए आपको दो बातें मिल गई, एक n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, जो आपको काम आएगी डायरेक्शन के लिए कि भाई एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास होगी तब उसकी डायरेक्शन कितनी चेंज होगी, तो उसके लिए है n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2। और 10th में आपने रटा था, याद है तो, कि रेयर टू डेंसर जाएगी तो वे बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। वे क्यों, ये बात थी कि n1 से n2 ग्रेटर है, रेयर टू डेंसर है, तो ये वैल्यू बड़ी हुई, तो नेचुरली है उसके साथ जो थीटा है वो स्मॉल होगा, because of this product remain constant। तो rarer to denser है, n2 greater than n1 है, तो नेचुरली है क्या होगा, θ2 less than θ1, इसलिए हम कहेंगे it's banded towards the normal। ये डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए इसलिए कि अगर रे को हम परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेंगे तो आप समझ सकते हैं θ1 इज इक्वल टू 0,
theta 1 is equal to 0, sin 0 is equal to 0, 0 into anything is 0, n2 तो 0 नहीं हो सकता, थीटा 2 भी 0, मतलब कि उस वक्त उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो आप कहेंगे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। अरे भाई रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेक्टर चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी, और दोनों चेंज होंगे तो भी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से समझना कि when light is perpendicularly incident without bending it's refracted, रिफ्रैक्शन तो है लेकिन उसमें बेंडिंग नहीं है। तो कोई भी रिफ्रैक्शन के अब हम थ्योरी करेंगे, उसमें आपको ये दो बातें याद रखनी है। तो आप कहेंगे कि अगर उल्टा करें तो यहां से 2 to 1 जाए तो क्या होगा, तो नेचुरली है 2 to 1 जाएंगे तो वही पाथ पे वापस हम जाएंगे, वही पाथ पे जाएंगे, उसको कहते हैं रिवर्स पाथ, और दिस लॉ इज नॉन एज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ही है 1 and 2 into 2 and 1, मतलब 1 and 2 into 2 and 1, तो इसकी प्रोडक्ट क्या 1 1, मतलब ये हुआ कि 1 and 2 is equal to 1 upon 2 and 1। मतलब सिंपल सी बात है कि आप ये पाथ पे 1 to 2 गए तो यही पाथ पे आप जाएंगे 2 to 1, तो पाथ आपको रिवर्स मिलेगा, वही पाथ पे आप वापस जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अब इस पर से हम बहुत सारी बातें करेंगे।